Assalamu alaikum everyone. How are you all? This is your host Muhammad Daniel Asif. I hope all of you are in the best of health and spirits. I'm really grateful for all the love and support that you have shown me so far, and I will encourage you all to like, share, subscribe my channel, and also press the bell icon so that you stay updated regarding the videos being constantly uploaded on this channel. Today I will be discussing Anglo-Saxon period in English literature with you. I will be discussing its characteristics, its major themes, prominent works, language, style, and its influence on modern English literature. So without further delay, let's delve into today's discussion. What is Anglo-Saxon period in English literature? This time period spans from the 5th to 11th century, 410 CE up till 1066 CE. Where CE stands for Common Era, starting from year 1 of the commonly followed calendar today, of which we are currently living in 2024. It is also known as Old English Literature, जो current England और जो Scotland के southern areas के जो regions हैं, यहाँ पर ये compose हुआ था, and it has been influenced by Germanic tribes like Angles, Saxons, and Jutes. So what were Germanic tribes? The Germanic tribes were basically a collection of ancient groups which had their roots from Northern Europe, and they were famous for their warrior culture. और जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उन लोगों ने माइग्रेट किया, and they have significantly influenced European history और जो modern European nations की development है उसको. Moving on, what are the characteristics of Anglo-Saxon period? सबसे पहले इसमें oral tradition पे जोर दिया जाता था, जो poetry थी उसको memorize किया जाता था. It was learned by heart and then it was recited as a ritual. Themes, heroism का theme prominent था, fate, और bracket में word लिखा है void. So void was an old English term meaning fate or destiny. It was prominent in the context of Anglo-Saxon and Germanic belief system. और ये basically void जो है word ये simplify करता है force को that governs the unfolding of events. वो होता है ना कि inevitable और एक beyond human control जो destiny set होती है जिसको आप control नहीं कर सकते. So in literature, void basically reflects themes of fate and mortality. इसके अलावा loyalty और religious faith का theme भी नजर आता है. Then there is use of alliteration and strong rhythm. Rhythm पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था. Alliteration की technique यूज़ की जाती थी. Alliteration is basically a literary device where consecutive words in a phrase or sentence begin with the same consonant sound. For example, अगर मैं आपको कहूँ कि she sells seashells by the seashore, तो इस पूरे sentence में जो अल्फ़ाबेट S की जो बार बार रेपिटेशन आ रही है ना स्टार्ट में, तो ये बेसिकली एलिटेशन टेक्निक एग्जांपल है. इसके बाद किनशिप और लॉयल्टी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था स्टोरी टेलिंग में. मूविंग ऑन टुवर्ड्स फेमस वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, बेओवुल्फ एपिक टेल है ऑफ अ हीरो फॉर फाइटिंग मॉन्स्टर्स लाइक ग्रैंडल्स मदर एंड लेटर ऑन अ ड्रैगन. Beowulf was basically an Old English epic poem, and it is one of the most significant works of Anglo-Saxon literature. इसके बाद The Wanderer, ये पोइम है जो लॉस और एग्जाइल के थीम्स के ऊपर फोकस करती है, एंड रिफ्लेक्शन ऑन फेट, कि फेट जो है डेस्टिनी कैसे वो पहले से फिक्स्ड है और हम ह्यूमंस जो हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. वी आर बाउंड बाय इट. देन द सीफेरर, अनदर फेमस पोइम ऑफ दिस एरा, ये आइसोलेशन के बारे में टॉक करती है. सी लाइफ की जो हार्शनेस है, जो बिटर रियलिटीज़ हैं, उनके बारे में जो है ये पोइम जो है ये उन पर लाइट थ्रो करती है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थीम्स ऑफ दिस पीरियड, हीरोइक कोड, ब्रेवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था. लॉयल्टी, वॉरफेयर में ऑनर होना चाहिए. फेट एंड फेथ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेगन बिलीफ्स एंड क्रिश्चियन फेथ. आई वुड लाइक टू एलैबोरेट मोर ऑन दिस. एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में बेसिकली जो थीम ऑफ फेट है ना, वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि एक अनअवॉइडेबल प्री डेस्टिन्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स है जिसके साथ हम सब ह्यूमंस टाइड है. एंड दिस इज लिंक्ड टू क्रिश्चियन बिलीफ्स रिप्रेजेंटिंग ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस. तो मतलब एक तरफ तो फेट है, वो कहती है कि जो सब कुछ है वो पहले से सेट है, और दूसरी तरफ फेथ है कि हम बिलीफ रख रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस भी है जो कि हमें बचा लेगी, जिससे हम अगर हेल्प सीख करेंगे तो वो हमें हमारी डेस्टिनी को, हमारे कोर्स ऑफ इवेंट्स को चेंज भी कर सकती है. तो दीज टू थीम्स ऑफन को एग्जिस्ट एंड विद कैरेक्टर्स लाइक बेओवुल्फ जो कि सेंस ऑफ इनएविटेबल फेट भी दिखाते हैं, और डिवाइन प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो रिलायंस वो भी शो कर रहे हैं. तो ये बेसिकली जो टेंशन है ना बिटवीन फेट एंड फेथ, ये हाईलाइट करती है द ब्लेंडिंग ऑफ पेगन ट्रेडिशंस विद इमर्जिंग क्रिश्चियन वैल्यूज इन द एंग्लो-सैक्सन पीरियड. मूविंग ऑन, थीम ऑफ एक्साइल एंड लॉस,
ये लाइफ जो है ट्रांजाइंट है, एक टेम्पररी है, और इसके ऊपर जो है वो भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है एंग्लो सैक्सन पीरियड की लिटरेचर में. Then I'm going to talk about language and style. It is written in Old English. Heavy use of cannings. अब canning क्या है? Cannings are basically figurative compound expressions which were used in Old English and they are used to describe something indirectly. यानी वो common noun को एक poetic या metaphorical phrase के साथ बदल देते हैं. अगर यहाँ पर मैं आपको बेओवुल्फ की ही एग्जांपल दूँ तो बेओवुल्फ में जो सी है उसको वेल लॉर्ड कहा जा रहा है और जो किंग है उसको एक रिंग गिवर के तौर पर रेफर किया जा रहा है. तो इन डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस का फायदा क्या है कि ये लैंग्वेज में डेप्थ और क्रिएटिविटी ऐड कर देती हैं. देन इट इज़ रिच इन एलिट्रेशन एंड सैसोरा. तो एलिट्रेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एलिट्रेशन जो है वो लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे कंसेक्टिव वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस जो है दे बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. और सैसोरा जो है ये बेसिकली लिटरेरी डिवाइस है दैट रिफर्स टू अ डेलिबरेट यानी इंटेंशनल पॉज और ब्रेक विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री व्हिच इज ऑफन प्लेस्ड इन द मिडल. तो इसका पर्पस क्या है? ये एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ड्स को जो एम्फसाइज करता है, उस पर फोकस करता है, रिदम क्रिएट करता है. देन in Anglo-Saxon period, we see transitions from paganism to Christianity. The earlier works and they were influenced by Germanic pagan traditions, or the later works and they reflect Christian teachings as seen in religious poems and texts. So basically, viewers, ये जो shift है from paganism to Christianity in Anglo-Saxon literature, ये reflect करता है जो cultural transition है early medieval period के दौरान जो थी. क्योंकि जो early works हैं उनमें faith यानी void इसके ऊपर फोकस किया जाता था और warrior values जो कि pagan tradition में rooted थी. लेकिन जैसे जैसे Christianity spread हुई तो डिवाइन विल का जो थीम है, सैल्वेशन है, मॉरल ड्यूटी है, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा. तो ये जो ब्लेंडिंग है ये आपको स्पेसिफिकली गेन मैं आपको यहाँ पर बेओवुल्फ की एग्जांपल दूंगा कि ये जो ब्लेंडिंग है ये आपको इन टेक्स्ट लाइक बेओवुल्फ नजर आती है जहाँ पे जो क्रिश्चियन रेफरेंसेस है वो कोएग्जिस्ट करते हैं ट्रेडिशनल पेगन एलिमेंट्स के साथ. और ये चीज़ ये इलस्ट्रेट करती है कि दोनों बिलीफ सिस्टम्स की मर्जिंग ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन एरा. देन finally, I would like to discuss what is the influence of Anglo-Saxon literature on modern English literature. तो Anglo-Saxon की जो themes हैं, language है और जो heroism है वो आपको modern works में भी नजर आता है. यानी modern works में भी poems में, prose में, novels में आपको बहुत ज़्यादा heroic deeds पे और heroism पे, bravery पे और warfare में honor के ऊपर जो है वो focus किया जा रहा है. यानी writers जो हैं वो Anglo-Saxon के writers से जो impressed और उन्होंने उन themes को आगे चलाया है. फिर बेओवुल्फ के जो themes हैं वो modern fantasy literature like J.R.R. Tolkien के वर्क्स में भी आपको मिलते हैं. J.R.R. Tolkien is a British writer and a philologist whose works, particularly The Lord of the Rings, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, it draws heavily on themes from Beowulf. क्योंकि Beowulf में भी और The Lord of the Rings में भी heroic struggle दिखाई जा रही है evil के against. फिर fate और free will के दरमियान जो tension है उस पे भी ऊपर भी जोर दिया जा रहा है और loyalty and honor की importance को stress किया जा रहा है. फिर एग्जाइल का और आइसोलेशन का जो थीम है जो एंग्लो सैक्सन पोएम्स लाइक द सी फेयरर एंड द वॉन्डरर में शो होता है वो मॉडर्न वर्क्स में भी परसिस्टेंटली आपको नजर आता है. और लॉस, लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन इन थीम्स के ऊपर आजकल के जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं एंड दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय एंग्लो सैक्सन पीरियड. एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि ये इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व करती है ऑन टॉपिक्स लाइक पर्सनल फ्रीडम, मॉर्टेलिटी, आइसोलेशन and how we search for meaning in an often indifferent or chaotic world. तो ये बेसिकली मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि कैसे जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है ये एंग्लो सैक्सन पीरियड से इन्फ्लुएंस हुआ है. तो दैट वाज ऑल टुडे व्यूअर्स. हमने आज के लेक्चर में एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में थोड़ा सा सुना, उसका देखा कि वो कब स्टार्ट हुआ, उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसमें स्टाइल क्या था, उसके मेजर वर्क्स क्या थे, थीम्स क्या थे, उसके अंदर जो है वो पेगनिज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ शिफ्ट जो है वो कैसे ट्रांजिशन कैसे हुई, और फाइनली हमने ये भी डिकोड किया कि उसका मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है. तो आई होप you would have understood this video very well. Do let me know in the comment section what you made of today's lecture and also recommend which topic you would like me to explore next. आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.